नमस्कार बच्चों. Let's continue with the topic the French Revolution, in which in previous class we learned about the outbreak of the revolution, and today we are going to learn that how this National Assembly got recognized and how the France becomes constitutional monarchy. Let's start with our topic, the Bastille. Now here you can see in this picture the Bastille Fort, how the National Assembly, the people of the Third Estate, how they were demolishing this Bastille prison. Now in previous class we learned about that after the rejection of their proposal by the king, members of the Third Estate walked out of the assembly in protest. And what they did? On 20th June, these representatives, it means all the members of the Third Estate, they assembled in the hall of an indoor tennis court, and where it is located in the grounds of Versailles. Now where they declared what they did over there, they declared themselves a national assembly. यहाँ पे इन्होंने क्या घोषणा करी, क्या डिक्लेयर किया अपने आप को, थर्ड एस्टेट की जगह वो क्या कहलाए जाएंगे, नेशनल असेंबली. Now there they had taken the oath that they will draft a constitution for their country, it means for France, and what will happen because of this constitution, it would limit the powers of the monarch. ये क्या करेगा, ये monarch के powers को जो है कम कर देगा, लिमिट कंट्रोल कर देगा. Now in previous class only I have told you about that the leaders Mirabeau, who was a noble, and Abbassius, who was a priest, led the Third Estate. It means these were those leaders who were leading these Third Estate people. यही वो लोग थे जो Third Estate के लोगों को लीड कर रहे थे, यानी उनके नेता यही थे. Now when these the people of these National Assembly, or when these National Assembly was busy there in drafting the constitution for France, यानी जब ये फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, संविधान बना रहे थे, द रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज इन ट्रबल. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यू मस्ट हैव लर्न और रेड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री बीइंग गवर्नड. ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है देश के लिए, जिसके अकॉर्डिंग सरकार अपनी सरकार चलाती है और लोगों को उनके राइट्स मिलते हैं. तो ये जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो व्हेन दिस नेशनल असेंबली वाज बिजी देयर इन ड्राफ्टिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द फ्रांस, इट वाज अंडर द टर्मोइल, इट वाज अंडर वी कैन से इन ट्रबल. ओके, यानी कि जब ये नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, दैट टाइम ओनली द रेस्ट ऑफ द फ्रांस इट वाज इन ट्रबल, वो ट्रबल में थे. व्हाई दे वर इन ट्रबल, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट द सबसिस्टेंस क्राइसिस. व्हाट हैपेंड देयर इन द सबसिस्टेंस क्राइसिस, द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड, yes, increased. Okay, now why the prices of the bread was increasing? First of all, already the population was increasing. Okay, there is a rapid growth in the population there in the France, and second thing was there about the severe winter. वहाँ पे जब कड़ाके की ठंड पड़ी, it destroyed the food crops. उसने क्या कर दिया, food crops को बर्बाद कर दिया, which resulted increase in the prices. So what will happen, जब crops destroy हो जाएंगे तो जो food के दाम हैं वो increase होंगे. And इसका advantages, who was taking this undue advantages of this situation? It was taken by the bakers, those who were hoarding the supplies of breads. अब बेकर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने क्या किया, इसको स्टॉक करने लग गए ब्रेड्स को, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक्वायर कर सकें या गेन कर सकें. Now the bakers also hoarding the supplies of breads for making greater profit. Now after spending long queues at the bakery, the crowds of angry women stormed into the shops. घंटों घंटों वेट करने के बावजूद भी ये जो women थी जो कि क्यू में खड़ी रहती थी ब्रेड के लिए, उनको जब उनका टर्न नहीं आता था तो अल्टीमेटली जब इन औरतों ने क्या कर दिया, इस शॉप्स पे अटैक कर दिया.
Okay, now at the same time the king ordered troops to move into Paris. अब उसी टाइम जो किंग थे उन्होंने अपने ट्रूप्स को यानी अपनी सैनिकों को, क्योंकि दैट टाइम द कंट्रोल दैट द सिचुएशन वाज नॉट अंडर द कंट्रोल, क्योंकि उस समय जो पेरिस की कंडीशन थी ना वो कंट्रोल में नहीं थी, इसीलिए राजा ने सोचा कि चलो अपने सैनिकों को भेज देता हूँ सो दैट दे कैन कंट्रोल द सिचुएशन. Now, after spending at the same time, this king when ordered the troops to move into Paris on 14 July, the agitated crowds, जैसे उन्हें पता चला कि भाई अब सैनिक भी आ रहे हैं, वैसे ही उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था मोनार्क के अगेंस्ट, और जब ये खबर फैली तो ये और भड़क गए. एंड these agitated crowd, they stormed and destroyed the Bastille. What they did, they demolished the Bastille prison. And whereas in the country side what इससे पहले देखो आप ये जो बेस्टील प्रिजन को डिमोलिश करने के बाद what is happening over there in this picture, these liberated means जो फ्री जो prisoners यानी जो कैदी आज़ाद हो गए थे उन वो परेड कर रहे हैं, ठीक है, और इनका लोग वेलकम कर रहे हैं. अब ना व्हाट एल्स हैपेंड ओवर देयर, ये तो हम अभी सिटी एरिया की बात कर रहे थे, पेरिस की बात कर रहे थे. Now on the other side, in the countryside, or we can say in the rural part of the France, the rumor spread from village to village that the lords of the manor, which type of rumors spread over there, that the lords of the manor यानी कि जो जमींदार थे जिनके बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े महल टाइप के घर होते थे जिन्हें कि शैतो कहा जाता है. What it is called in France, शैतो. Okay, शैतो means mansion or we can say the castle. ठीक है, इनके महल को कहा जाता है शैतो. So in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor were on their way to destroy their ripe crops. So what rumor was spreading over there in the village, that these manors, they were sending their gangs, they hired a gangs, brigands, जिसे आपकी बुक में लिखा हुआ है brigands, which means लुटेरे, कि इन्होंने लुटेरों को हायर कर लिया है और ये जो लुटेरे हैं ये इनकी फसलों को नष्ट करने वाले हैं. So what rumor spread over there, that these manor, they are way to destroy their ripe crops, and who is going to destroy this ripe crops, or how they are going to destroy these ripe crops, through their hired gangs, जिनको कि उन्होंने किराए पे लिए थे, ऐसे जो लुटेरे थे उन लुटेरों के ज़रिए जो है वो उनकी फसलों को नष्ट करने वाले हैं. इस तरह की अफवाह जो है वहाँ के गांव वालों के बीच में फैल गई. Now the large number of nobles now what happened over there when this rumor spread in the countryside, due to this fear, peasants in several districts attacked the castle of nobles. Now what happened when they got this news or when they got this rumor, जब उन्हें ये अफवाह या ये जो खबर जब गांव में पूरे फैल गई तो वो डर गए. Now peasants in several districts attacked the castles of nobles. उन्होंने नोबल्स के कैसल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया. लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड दे स्टार्टेड लूटिंग द होर्डेड ग्रेन्स, जो स्टॉक में जो इन्होंने अनाज स्टॉक करके रखे थे ना उन स्टॉक को उन्होंने लूटना स्टार्ट कर दिया. एंड व्हाट एल्स दे डिड, दे बर्न डाउन ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच वॉज कंटेनिंग द मेमोरियल ड्यूज, विच वॉज हैविंग द रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज, यानी कि जो ज़मींदार इनसे जो लगान वसूला करते थे या जो टैक्स लिया करते थे उनकी सारे जो ड्यूज़ की जो रिकॉर्ड्स थे, जो डिटेल्स थी, उन सबको, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने बर्न कर दिया, जला दिया. Now what else happened due to this, what happened to these noble families? The large number of noble fled from their homes, वो घर से भाग गए जैसे उन्हें पता चला ना कि these peasants are started attacking on these nobles. जब जैसे ये खबर पता चली कि जो जितने भी peasants हैं वो nobles पे अटैक कर रहे हैं, तो the large number of nobles, they fled from their homes and many migrated towards the neighboring countries, और बहुत तो अपने पड़ोसी देश में जाकर migrate हो गए. Okay, now in next you can see this picture. Here you can see the burning of chateau. Chateau, as I told you, that was the mansion or the castle of manor. जमींदारों के जो घर होते थे, बड़े बड़े जो महल टाइप के जो घर होते थे उसे कहते हैं chateau. As the peasants rights in the countryside, जैसे ही वो रूमर फैली कि भाई they are going to destroy their ripe crops, जैसे उन्हें खबर पता चली थी कि उनकी फसलें खराब करने वाले हैं ये, तो उन्होंने उनके घर जलाना स्टार्ट कर दिया. तो peasants भड़क गए और वहाँ पे दंगे भड़क गए, राइट्स हो गए
ठीक है, इसी पीजेंट्स राइट्स में दे स्टार्टेड बर्निंग देयर होम्स और वी कैन से द शैतो दे आर इन द कंट्री साइड. Now, on 4th August 1789, what happened over there? The France passed the law in which they abolished the feudal system of obligation and taxes. यानी जो ज़मींदारी प्रथा थी जिसमें वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, और इन थर्ड एस्टेट के लोगों को उनको ओबलाइज करना पड़ता था, यानी कि उनके अंडर में रह के काम करना पड़ता था. तो एक लॉ पास किया गया 4th August 1789 में, in which these feudal system was abolished. Now the member of clergy, what else over there, else happened over there? The members of the clergy, they were also forced, यानी उन पर भी फोर्स किया गया कि to give up their privileges, कि वो अपने privileges जो हैं वो छोड़ दें. Okay, as I told you that the nobles and the clergy, they were having the privileges in the society. इनको privileges दी गई थी society के अंदर, French society में. That is why when this National Assembly drafted this constitution, or when they declared themselves as the National Assembly, what they did, first of all they passed a law in which they abolished the feudal system. सबसे पहले उन्होंने feudal system को ख़त्म किया. Second, they forced the clergy to give up their privileges. And what else they abolished, और उसके अलावा उन्होंने क्या ख़त्म करवाया? The tithes मैंने आपको बताया था, it was a tax, okay, which was collected by the church. जो कि कौन कलेक्ट करता था? चर्च कलेक्ट करते थे, ठीक है. तो ये जो टैक्स का था, टाइट्स जो था, टैक्स जो कलेक्शन था, इसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. एंड द लैंड विच वाज ओन्ड बाय द चर्च, यानी चर्च के पास जितनी भी ज़मीनें थी, दैट वाज कॉन्फेस्टिकेटेड, ओके, दैट वाज सीज्ड, यानी कि उनसे वो ज़मीनें छीन ली गई. Now what happened when they started confiscating the lands which was owned by the church? As a result, the government acquired assets. How much assets they acquired because of this action? They got 2 billion livre, यानी कि इतना जो है 2 बिलियन लिवरे के करीब उन्होंने संपत्ति जो थी वो एक्वायर कर ली. Now you can see through this picture the National Assembly on the night of 4th August 1789. इस पिक्चर में आपको नेशनल असेंबली के बारे में दिख रहा है कि 4th August 1789 में किस तरह से गैदर्ड थे. And through this cartoon you can see how the third estate people or the National Assembly, they started confiscating the lands of church. किस तरह से वो चर्च के लैंड्स को कॉन्फेस्टिकेट कर रहे हैं, यानी सीज कर रहे हैं, हथिया रहे हैं, ये दिख रहा है इस कार्टून के ज़रिए. Now in next topic we will learn about how the France becomes a constitutional monarchy. अब देखिए, पहले earlier the France was having the monarchy system. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, in previous class we learned about कि which type of government was there in the France, किस तरीके की सरकार थी, किस तरह का रूल था वहाँ पे, that was monarchy. Now अब किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया? पहले ही मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे, नाउ इट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ओके, लिसन केयरफुली, ये ध्यान से सुनिए कि पहले वहाँ पे कौन सा सिस्टम था? मोनार्की सिस्टम था. नाउ इट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नाउ व्हाट हैपेंड देयर? द नेशनल असेंबली, दे कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. In 1789 only they declared themselves as the National Assembly, and there only they had taken the oath that they will draft the constitution in which they could limit the powers of the monarch. ठीक है, यहाँ पे 1789 में इस नेशनल असेंबली ने क्या ओथ लिया था कि वो हमारे अपने देश के लिए यानी फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे जिसमें कि वो मोनार्क के पावर को यानी राजा के पावर्स को कंट्रोल करेंगे. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड देयर इन 1789 में तो उन्होंने सोचा था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. 91 में उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया. नाउ नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. नाउ व्हाट वाज देयर मेन ऑब्जेक्टिव? देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. यहाँ पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटो क्या था? They wanted to limit the powers of the monarch. Now what they did there in the new in their constitution, उन्होंने क्या किया?
they did the separation of powers in different institution, यानी powers को different institution में divide किया गया. Earlier what was there in the monarchy system, all the powers was there in the hands of the monarch only, यानी वही जज करता था, वही लॉ बनाता था और वही उसे एग्जीक्यूट करता था. Now what happened here, these power instead of being concentrated in the hands of one person, now it was separated and assigned to different institution, यानी कि अब इसे अलग अलग कर दिया गया पावर्स को और अलग अलग लोगों को या अलग अलग इंस्टीट्यूशन को इसके लिए असाइन किया गया. Now what are those institution? The judiciary, legislature and executive. Okay, now in this way the France becomes a constitutional monarchy. इस तरह से constitutional monarchy बनाई. Okay, now the constitution of 1791 gave the power of making laws in the hands of National Assembly. Now who can make the laws for the France, यानी अब फ्रांस के लिए लॉ कौन बनाएगा. ये जो 1791 में जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया है, इसमें अब जो सारी ताकतें हैं लॉ बनाने की, जो ताकतें हैं, इट वाज गिवन टू द नेशनल असेंबली, इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अब ये जो नेशनल असेंबली है ये डायरेक्टली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं. ओके, अब ये कैसे है ये भी हम इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नाउ द नेशनल असेंबली इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स. अब देखो ये जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते थे इनको कौन इलेक्ट करता था, ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स इलेक्ट करते थे. और इनको इलेक्टर्स को कौन चुनता था या इलेक्ट करता था, which were chosen by this active citizens. अब वहाँ पे citizens को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया. One passive citizen and another one is active citizen. Okay, active citizens comprises of only men. इसमें सिर्फ आदमी होते थे, men ही होते थे. Those who are having the voting rights. यानी जैसे हमारे अभी देश में, हमारी कंट्री में वुमेन्स आर ऑल्सो हैविंग द वोटिंग राइट्स, औरतों के पास भी वोटिंग राइट्स था, लेकिन उस समय सिर्फ मेन के पास था ये वोटिंग राइट्स इन फ्रांस. एंड विच मैन हु इज़ अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो 25 साल से ऊपर के थे उन्हें ये वोटिंग राइट्स थे. एंड व्हाट अदर क्राइटेरिया, और क्या क्राइटेरिया थे, वो थे हु पेड टैक्सेस. ठीक है, और दूसरे वही आदमी वोटिंग दे सकते थे जो कि टैक्स पे करते थे. दोज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, यानी कितना टैक्स पे करना चाहिए मिनिमम, उसका क्या क्राइटेरिया है कि उनका जो टैक्स वो पे करते थे, एक दिन का जो टैक्स पे करते थे वो 3 दिन के लेबर के वेजेस के बराबर होना चाहिए. ठीक है, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, यानी उनका टैक्स कम से कम एक लेबर का जो 3 दिन की जो आमदनी होती है या सैलरी जो होती है उसके बराबर, उतनी उनका टैक्स करने की उनके पास कैपेसिटी होगी. देन ओनली दे विल हैव द वोटिंग राइट्स. नाउ द रिमेनिंग दोज हु आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, या इतना नहीं पे कर पाते थे, लाइक मैन एंड ऑल द वुमेन, आदमी, बाकी जो बचे हुए आदमी थे और जो जितनी भी औरतें थीं, वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स. उसको किस कैटेगरी में डाल दिया गया, दे वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स. ओके, हु हैड नो वोटिंग राइट्स. नाउ दीज पीपल्स दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स. who were having the voting rights, only the active citizens. Okay, now later on we will learn about, in next class we will learn about how the France constitution, how was this France constitution at that time, and then how the France abolishes the monarchy and how it becomes a republic. Take care, bye.